Assalamualaikum everyone, hope you are well. Welcoming you all to another video of STEM International. This is Zinia here और English 6 book का जो second last chapter है, chapter 11, उसकी हम exercise को आज start करने जा रहे हैं. And in this particular exercise, of course, we'll first start with some questions which are related to the content जो हमने पढ़ा in the story that was provided in chapter 11 और उसके अलावा कुछ नई चीज़ें grammar से related, कुछ नई चीज़ें English language से related. तो आइए सीखते हैं. Alright, so the very first question of the exercise is to choose the correct option. What made Mrs. Amna and her children feel frightened on the winter night? के सर्दी की रात जो है Mrs. Amna और उनके बच्चे किस चीज़ से डरे थे? A loud thunderstorm? Was it a sudden knock on the door? Was it a cold wind and a baby's cry? Or was it a strange light in the sky? So what we saw, it was a cold wind and a baby's cry. So the third one is the right answer. Who became Noah's closest friend in the family? Noah का closest friend कौन बना? भाई तो नहीं बने थे, ना अरमान, ना ज़यान, ना बिलाल, बल्कि हमने पढ़ा कि सारा उसकी closest friend बन चुकी थी. So fourth one is the right option. Why did Sarah not play games with her brothers at first? पहले क्यों नहीं अपने भाइयों के साथ खेलती थी सारा? She was afraid of her brothers. She had plenty of homework. Her brother said games were not for girls, or she did not like sports and fun. क्या वो अपने भाइयों से डरती थी? नहीं. क्या उसके पास बहुत ज़्यादा होमवर्क होता था? नहीं. क्या वो स्पोर्ट्स पसंद नहीं करती थी? ऐसा भी नहीं है. लेकिन ये ज़रूर सच है कि her brother said कि these games were not for girls, कि ये जो गेम्स हैं ये लड़कियों की नहीं होती. This is why. So the third one is the right answer. What made Noah sad? नोवा क्यों जो था वो सैड सा फील करता था? The housework was hectic, Sarah's brothers were naughty, Sarah was treated unfairly, या the weather was cold. So what we have seen from the story is कि सारा को unfair treatment मिल रहा था. Therefore, the third one is the right option. What message did Noah leave behind? क्या मैसेज नोवा पीछे छोड़ के गया था? Being the eldest, studying a lot, respect equality and kindness, या फिर be brave and confident? He said one thing. I was here to remind you of the values that you have forgotten. और वो कौन सी values थी? Respect, equality and kindness. Now we come towards the fill in the blanks. तो इसमें we see the first one which says outside a chilly wind swept through the dash. तो हमने देखा था कि बाहर उनके घर के बाहर जो था वो garden था. So outside a chilly wind swept through the garden. Sarah wished to play football or cricket with her. किसके साथ खेलना चाहती थी? अपने भाइयों के साथ. So with her brothers. Sarah's mother brought her a dash dress for inter-school match. जब हमने inter-school match की बात की, जब उसकी सिलेक्शन हो गई तो टीम के कलर, यूनिफॉर्म का कलर ब्लू था, जबकि सारा की जो मदर थी वो उसके लिए पिंक कलर का ड्रेस ले आई थी. सो हर मदर ब्रॉट हर अ पिंक ड्रेस फॉर इंटर स्कूल मैच. नोवा वॉज एन डैश. नोवा क्या था? नोवा वॉज एन एलियन. सारा रिटर्न होम प्राउडली होल्डिंग अ. सारा घर वापस आती है और उसके हाथ में क्या होती है? मैच जीतने के बाद ट्रॉफी. सो द आंसर ओवर हियर इज ट्रॉफी. एंड नाउ वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस एज ऑलवेज, जिसका हम शॉर्ट से आंसर्स निकालेंगे कमिंग फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग जो कि हमें स्टोरी देती है. व्हाई डज द फैमिली फील फ्राइटेंड व्हेन द डोर ओपन सडनली ऑन द कोल्ड नाइट? एंड दैट वाज बिकॉज जो फैमिली थी, एक तो पहले ठंड थी और फिर एकदम दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा खुला और फिर उसके बाद वहाँ पे जो है वो ठंडी हवा भी आ गई, और दूसरा एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी आई. सो इस वजह से वो डर गए थे. हाउ डिड नोवा हेल्प सारा? नोवा ने सारा की कैसे मदद की? पहले तो उसने ऐसे मदद की कि उसने घर के काम में हेल्प करना शुरू कर दिया. दूसरा वो सारा के साथ खेलना शुरू हो गया ताकि सारा में कॉन्फिडेंस आए, स्किल्स उसकी जो हैं वो ज़्यादा बेहतर बनती जाएँ. तो दिस वॉज हाउ नोवा बेसिकली हेल्प सारा. और दूसरा नोवा ने एक और काम किया था, उसने उसकी फैमिली को बेसिकली वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ भी सीखने को दी, जिसकी वजह से सारा के साथ किया गया अनफेयर ट्रीटमेंट जो है वो ख़त्म हो गया. वाई डिड सारा गेट अपसेट ऑन द मैच डे? मैच डे पे सारा क्यों गुस्सा आया था? दैट वाज बिकॉज हर मदर बेसिकली ब्रॉट हर अ पिंक दिस ड्रेस टू वेयर फॉर द इंटर स्कूल मैच, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो बाकी टीम थी उसका यूनिफॉर्म ब्लू कलर का था. एंड व्हाट डिड नोवा से अबाउट इक्वालिटी? उसने इक्वालिटी की क्या बात की? उसने कहा था कि सब के सब इक्वल हैं, सारों में सेम कैपेसिटी है, सब में सेम स्किल्स हैं, पैशन है, आगे बढ़ने की भी उनके अंदर सलाहियत मौजूद है. तो ये सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए. हाउ डिड द मिसेस आमना's बिहेवियर चेंज एट द एंड? एंड बाय द एंड हम देखते हैं कि मिसेस आमना जो सारा से घर का काम करवाती थी और भाइयों को बाहर खेलने के लिए टाइम मिलता था, तो वो उन चीज़ों को चेंज करती हैं. अब सब ही सब काम में हाथ बटाते हैं और सब ही आपस में एक जितना खेलते हैं. जेंडर की बेसिस के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं रखती मिसेस आमना आफ्टर व्हाट हैपेंड विद नोवा एंड सारा.
एंड देन वी हैव सम वर्ड्स एंड मीनिंग्स, वही डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके साथ में मीनिंग्स हैं। द फर्स्ट वर्ड इज गस्ट, अ स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड, ठीक है, बहुत तेज़ जो आंधी आती है वो गस्ट होती है। अनयूजुअली, अनयूजुअली का मतलब नॉट नॉर्मल, ठीक है, उनके नॉर्मली जो चीज़ नहीं होती उसको अनयूजुअल कहते हैं। देन वी हैव ऑर्डिनरी, कॉमन और नॉट स्पेशल, ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही आम हो और कोई उसमें स्पेशल ना हो तो वो ऑर्डिनरी होती है। इक्वालिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, सबको एक ही तरह से ट्रीट करना या सबके साथ एक ही तरह का बर्ताव रखना, इसको इक्वालिटी कहते हैं। देन वी हैव ट्रॉफी, अ प्राइज फॉर विनिंग, जब भी किसी चीज़ को या किसी भी गेम या व्हाट्सएवर कुछ भी जीते तो उसमें जो प्राइज़ मिलता है उसको ट्रॉफी कहा जाता है। देन वी हैव कॉन्फिडेंट, बिलीविंग इन वन सेल्फ, खुद में एतमाद रखना को कॉन्फिडेंस कहते हैं। फिर अनफेयरनेस, लैक ऑफ इक्वालिटी और जस्टिस, इक्वालिटी और जस्टिस का कमी हो तो उसको अनफेयरनेस कहा जाता है। एंड देन वी हैव रिस्पेक्ट विच इज़ पोलाइट एंड काइंड बिहेवियर, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, काइंड है, पोलाइट है तो उसको हम रिस्पेक्ट कहते हैं। Next we have the part read and respond. यहाँ पे what we're gonna do is read the following short passage aloud with clear pronunciation, correct pauses and suitable expression. After reading, discuss the purpose of the writer and explain what makes the passage engaging. अब what we're gonna do is कि provided हमने जो passage है वो पढ़ना है और फिर हमने उसके डिस्कस करना है कि आपको क्या लगता है राइटर ने ये क्यों लिखा और क्या मैसेज क्या वो देना चाह रहा है। आयशा's family felt proud of her success. आयशा की जो फैमिली थी वो उसकी कामयाबी से बहुत ज़्यादा में प्राउड रखती थी। हर फादर स्पोक अबाउट हर अचीवमेंट्स विद रिस्पेक्ट व्हेनेवर ही मेट रिलेटिव्स, जब भी उसके फादर जो थे वो रिलेटिव्स से मिलते थे तो वो उसकी अचीवमेंट्स को बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बयान करते थे। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देयर, आयशा चोज टू हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन एंड यंग गर्ल्स इन हर कम्युनिटी। और सिर्फ इधर तक ही नहीं बल्कि मतलब वो सिर्फ अपने स्टडीज़ या अदरवाइज़ जो है वो कामयाबी लिए और वहीं पे रुक जाए, बल्कि वो इससे बढ़कर अंडर प्रिविलेज्ड जो ख़वातीन हैं या फिर लड़कियां हैं उनको उनकी भी मदद करती थी जो उसकी कम्युनिटी में होती थी। शी गाइडेड देम इन लर्निंग बेटर स्किल्स, एनकरेज देम टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, वो उनको बेहतर चीज़ें सीखने में भी मदद की, उसने गाइड भी किया और उनको इनकरेज भी किया कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट खुद मुख्तार बन पाएँ। तो आपको क्या लगता है कि आप इससे क्या सीखते हैं? वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आप जितना मर्जी कामयाब हो जाएं लाइफ में, द एक्चुअल कामयाबी इज़ कि उस सब के बावजूद आप फिर भी उन लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ के चलते हैं जो कि इन चीज़ों में या इन प्रिविलेजेस को नहीं पा पाते इन द लाइफ, या फिर उनके लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इन ऑर्डर टू मूव अहेड। एंड विद दैट वी हैव द वोकेबुलरी सेक्शन, जिसके अंदर डिक्शनरी हमने जो है वो पहले भी एक दफ़ा डिस्कस की हुई है कि व्हाट डज़ अ डिक्शनरी बेसिकली स्टैंड फॉर एंड ऑल। सो डिक्शनरी इज़ अ बुक और एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स दैट लिस्ट्स वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इट प्रोवाइड्स देयर मीनिंग्स एंड ऑफन इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, ओरिजिन एंड यूजेज. द डिक्शनरी एक ऐसी किताब है या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है जहाँ पे एक पूरे अल्फाज की लिस्ट होती है आपके पास जो किसी एक पर्टिकुलर ज़ुबान से रिलेटेड हो, और वो लिस्ट आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिलती है और वो उनके मीनिंग्स भी देती है और आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देती है जिससे उसकी प्रोनाउंसिएशन जान सकें, उसके स्पेलिंग्स जान सकें, उसका ओरिजिन कहाँ से, वो बेसिकली किस लैंग्वेज से एक्चुअली में बना वर्ड, और फिर उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है. सो इन अ डिक्शनरी वर्ड्स यूजुअली हैव टू मेन टाइप्स ऑफ मीनिंग. दो तरह के मीनिंग्स मिलते हैं, डेनोटेटिव मीनिंग एंड कॉनोटेटिव मीनिंग. डेनोटेटिव मीनिंग क्या होते हैं और कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होते हैं, आइए लेट्स लर्न अबाउट दैट. द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स लिटरल और एग्जैक्ट मीनिंग, द वन यू फाइंड इन अ डिक्शनरी. इट इज़ फ्री फ्रॉम इमोशंस और पर्सनल फीलिंग्स. बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग जो आपको, एक लिटरल मीनिंग जो आपको डिक्शनरी में लिखा हुआ मिलेगा जिसमें कोई इमोशन या पर्सनल फीलिंग एडेड नहीं है, वो डेनोटेटिव मीनिंग होता है. देन वी हैव कॉनोटेटिव मीनिंग. The connotative meaning of a word refers to the feelings, ideas or emotions that a word has beyond its literal meaning. एक तो उसका literal meaning था, लेकिन उससे बढ़ के जो उसके साथ कुछ feelings attached हैं उनकी वजह से उसका एक connotative meaning बनता है. Example आइए, bright. Detonative meaning में देखें तो इसका sentence बनता है the room is bright because the lights are on. Right? There is no feeling or emotion associated. या फिर कॉनोटेटिव में देखा शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पे ब्राइट का मतलब सजेस्टेड बन गया कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट वुमन, वरना ब्राइट का मतलब क्या था कि बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे मतलब अंधेरा कम हो, ज़्यादा रोशनदार, सो इस तरह की चीज़. देन वी हैव कोल्ड. द वाटर इज़ कोल्ड इन विंटर. देयर इज़ नो अदर मीनिंग अदर दैन के जी पानी जो था वो ठंडा था. बट इन कॉनोटेटिव सेंटेंसेज वी कैन हैव ही गेव मी अ कोल्ड रिप्लाई, बहुत ही अनफ्रेंडली सा रिप्लाई दिया. अब ये वाला मीनिंग आपकी डिक्शनरी में
उस तरह से लिटरल सेंस में नहीं प्रोवाइडेड। देन वी हैव होम, माई होम इज़ नियर द पार्क, कि मेरा घर जो है वो पार्क के पास है, या फिर दिस स्कूल फील्स लाइक होम, कि मैं इस स्कूल में घर जैसा महसूस करता हूँ। कंफर्ट और सेफ्टी का तकाजा यहाँ पे बताया गया है, होम वर्ड के साथ रिलेट कर दिया गया। फिर स्नेक है, इसी तरह स्नेक लिव्स इन अ जंगल, स्नेक को एज एन एनिमल ही लिया जा रहा है और वो जंगल में रहता है, जबकि ही इज़ अ स्नेक, वो सांप है। सांप उस तरह के इंसान को कहा जाता है जो इस पर ट्रस्ट ना किया जा सके। एंड देन द लास्ट एग्जाम्पल प्रोवाइडेड ओवर हियर इज़ रोज़, शी प्लांटेड अ रोज़ इन द गार्डन, तो रोज़ हमें पता है गुलाब के फूल को कहा जाता है, उस सेंस में यह है यहाँ पे। या फिर शी इज़ अ रोज़ अमंग फ्रेंड्स, तो रोज़ बेसिकली खूबसूरती के साथ भी अटैच किया जाता है वर्ड, तो इसका मतलब है कि वो बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली ऑन पेज 114 एंड राइट डी फॉर डेनोटेटिव मीनिंग एंड सी फॉर कॉनोटेटिव मीनिंग। द सन इज ब्राइट टुडे, अगेन इसमें डेनोटेटिव मीनिंग है, कोई कॉनोटेशन नहीं है। अली इज अ ब्राइट स्टूडेंट इन क्लास, सी। The night was dark and silent, D. She felt dark thoughts after hearing the news, C. The teacher has a warm smile, again C. Please wear a warm jacket in winter, this is D. And then the next is the use of thesaurus. Now that we know how to use a dictionary and also we know कि दो तरह के meanings होते हैं, now there is a thesaurus that we have to use. So we can improve our vocabulary by using a thesaurus. अपनी vocabulary को हम बेहतर बना सकते हैं thesaurus के इस्तेमाल से। Thesaurus is a reference book or digital tool that provides words with similar meanings and opposite meanings. ऐसी किताब या digital tool जो कि किसी भी लफ्ज़ का के सेम मीनिंग वाले अल्फाज जो हैं वो आपको बता दे, या फिर उल्टे जो मीनिंग्स होते हैं, ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, वो वाले अल्फाज बता दे। जो सेम मीनिंग वाले अल्फाज होंगे उनको सिनोनिम्स कहते हैं, और जो डिफरेंट या ऑपोजिट मीनिंग्स वाले होते हैं उनको एंटोनिम्स कहते हैं। डिक्शनरी एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, देयर स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन, व्हाइल थिसॉरस हेल्प्स अस फाइंड अल्टरनेटिव वर्ड्स टू अवॉइड रेपिटेशन एंड मेक और राइटिंग मोर इफेक्टिव। हर जगह वेरी 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 लिखने की जगह हम कोई अल्टरनेटिव वर्ड लिख सकते हैं और अपनी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज टू फाइंड टू सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन योर बुक। अब आप थिसॉरस पकड़ेंगे और उसमें से परमानेंट के 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स लिख लीजिए। एंटोनिम्स नहीं कहा गया लेकिन आप लिख लीजिए। देन वी हैव मेंटेन, इसमें भी आप सिनोनिम्स फाइंड आउट करें तो एंटोनिम्स भी फाइंड आउट करके देखें। सक्सेस का भी सेम, स्टडी और प्राइड, इन 5 अल्फाज आपको जो दिए गए हैं, इन 5 के आप सिनोनिम्स भी देखें, और एडिशनली अगर आपका दिल करे तो आप एंटोनिम्स भी देख लें। ऑलराइट, सो वी आर डन विद ऑल दैट। हमने सारे वो क्वेश्चंस अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करके सॉल्व किए जो कि किए जा सकते थे विद द अंडरस्टैंडिंग जो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिली, स्पेशली दैट ऑफ इंक्लूसिविटी, स्पेशली दैट ऑफ नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन पीपल कमिंग फ्रॉम देयर जेंडर डिफरेंसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड पढ़ी वो थी वोकैबुलरी के पार्ट में, और वोकैबुलरी के पार्ट में किस तरह से एक डेनोटेटिव मीनिंग और एक कॉनोटेटिव मीनिंग होता है, और इन दोनों मीनिंग्स के डिफरेंस की बेसिस के ऊपर किस तरह से हम एक ही वर्ड से डिफरेंट सेंटेंसेस और डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑन दैट नोट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सो दैट you will excel in this particular difference, and we will meet now in the next video, next portion of this exercise. Till then, take care and Allah Hafiz.